Hello, 6th standard. How are you all? Hope you all are safe in your home and staying healthy life. Okay. Today we will start our social studies subject. In our social studies, see, up till 5th standard you people studied with EVS. Now from 6th standard onwards you have to study with not only social studies, in fact with science as well. Means instead of one subject EVS, now your two subjects social studies and science will be there. In your social studies you will be having 3 books along with you. That is, one is of history, one of geography and one of civics. Civics, that is political life. Okay. Now this book is your civics textbook. If you all have your civics textbooks with you, hope you people have already purchased new books of 6th standard. If you have your books with you, please take out and read and understand my explanation along with reading. And if you don't, then too, no issues. I'll be explaining you word to word by showing you in this video, so that you can understand word to word even from this video itself. Okay. Now for your social studies you will be having as I said 3 subject, that is 3 topics, that is history, geography and civics. Okay. So in all will be having lessons to complete. Like in this civics we are going to have total 9 lessons, right from chapter number 1 till chapter number 9. Total 9 lessons I'll be teaching you from civics in first term and second term as well. So let us begin with our first chapter of civics, that is understanding diversity. Okay, before I tell you about understanding diversity, let me tell you the meaning of civics in the simple language. See, आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में किस तरह से वर्क किया जाता है वो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो, राइट. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल the way our trustee sir, the way our principal ma'am gives order, and further they give order to coordinators, coordinators give order to teachers, teacher give order to students. Yes or no? इसी तरह से जो यहाँ पर हमारे विलेजेस और सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है और हर एक वर्क को सिस्टमेटिकली करना पड़ता है. ओके. लाइक यू for example, if you are living in apartment, then there might be one of the secretary, those who which will control all the activities like paying electricity bill or extra, right. Easy, simple. For example, I can give you all people are very much fond of watching Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. In Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, the way Bhide controls the society, you might have seen, right. And in taking any decision about society, वो लोग मीटिंग करते हैं, वो लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स वो डिसाइड करते हैं, एंड देन फाइनली वो लोग अपना काम इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके. सो इन दैट वे ओनली, से लाइक इन दैट वे ओनली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया इज़ अवर कंट्री, राइट. इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है. वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट. ओके. नाउ state government, say like suppose we have 28 states, yes, and then
we have union territories. Yes or no? नाउ यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में. स्टेट गवर्नमेंट मीन्स सेपरेट गवर्नमेंट फॉर गुजरात, देन सेपरेट गवर्नमेंट फॉर महाराष्ट्र, राइट. सो सेपरेट गवर्नमेंट फॉर केरला, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर वी कैन टेल मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. ओके, तो गवर्नमेंट अलग अलग होती है, बट ये जो सारी गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स किसके अंडर काम करती हैं? दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. यस और नो? इफ़ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल हेयर, आपको ईजी एग्जाम्पल दूँ. टेक एग्जाम्पल of your classes, right? We have so many classes in our school, right? अगर आप हर एक क्लास को स्टेट माने, से लाइक सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन सेकंड स्टैंडर्ड, देन थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, हर एक गवर्नमेंट का हर एक क्लास को अगर हम स्टेट माने, तो हर एक क्लास में सेपरेट क्लास टीचर अपॉइंट होता है. यस और नो? यस. ओके. एंड हेयर हर एक स्टेट में सेपरेट सीएम अपॉइंट होता है, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर, राइट. लाइक इन गुजरात, विजय रूपानी इज़ वर्किंग एज अ लीडर ऑफ गुजरात. ओके. तो नाउ क्लास टीचर इज़ कम्प्लीटली आंसरेबल फॉर पर्टिकुलर क्लास. ओके, क्लास टीचर ही आंसरेबल होती है. शी और ही कीप्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ all the classes and all the students in class, right? Now the same thing here also, classes होती हैं, states होती हैं. states चीफ मिनिस्टर इज़ वन लीडर, लेकिन अब वो अकेला लीडर काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अगर गुजरात की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट गुजरात, देन इन गुजरात इज़ वेरी बिग स्टेट, राइट. Gujarat is very big state. Now whole state is divided into districts. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा गुजरात डिवाइड किया गया है. यस, डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारे तालुकाज आते हैं. यस और नो? तालुकाज में कई सारे विलेजेस आते हैं, राइट. ओके. और तालुकाज में कई सारे विलेजेस आते हैं, एंड इवन आई कैन टेल सिटीज़ आती है, और वी कैन टेल टाउन्स आते हैं. यस और नो? तो अलग अलग प्लेसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड की गई है. ओके. नाउ वन लीडर फॉर दिस इज़ अपॉइंटेड, दैट इज़ सीएम, चीफ मिनिस्टर. ओके. तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में एमएलएज अपॉइंट किए जाते हैं. एमएलएज क्या करते हैं? दे completely have a lookout on all this. Okay, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में. से लाइक सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट नवसारी डिस्ट्रिक्ट, अगर हम नवसारी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे तालुकाज हैं. ओके, देयर आर मैनी तालुकाज, और हर तालुका में वी हैव नंबर ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, राइट. तो नवसारी के जो एमएलए होंगे वो सभी विलेजेस का, टाउन का, सिटी का रिपोर्ट लेंगे. किससे रिपोर्ट लेंगे? तालुका से. तालुका, व्हाट तालुका विल डू? तालुका विल गैदर द रिपोर्ट ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ विच एवर कम्स अंडर देम. ओके, जो भी उनके अंडर आता है वो उनकी रिपोर्ट लेंगे, और उनकी रिपोर्ट लेकर वो एमएलए को पहुंचाएंगे, और फिर एमएलए वो सारी रिपोर्ट सीएम को पहुंचाएगा. ओके. सो इस तरह से वर्किंग चलता है. एंड देन सीएम को, अगर सीएम हैव मच पावर इन देयर हैंड टू कंट्रोल द स्टेट. ओके.
लेकिन अगर सीएम को लगे कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है कि ही कैनॉट कंट्रोल इट, then he send that whole issue to central government. That is, right now BJP is working as a central government. नरेंद्र मोदी लीडर है, that is प्राइम मिनिस्टर है, ओके. मिस्टर कोविंद इज़ प्रेसिडेंट है, राइट. तो ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ये लोग सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. अंडरस्टूड. लाइक क्लास टीचर्स क्लासेस को कंट्रोल करते हैं, राइट. अब क्लास टीचर्स जब नहीं होते क्लास में तो दे अपॉइंट मॉनिटर्स, यस और नो, दे अपॉइंट मॉनिटर्स. नाउ दे डोंट अपॉइंट, मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपॉइंट 2 or 3 monitors, yes or no. Like if one class is having 4 lines, तो all 4 lines will have one monitor. सो मतलब ये जो मॉनिटर्स हैं वो लोग अपनी अपनी लाइन को कंट्रोल करेंगे और अपनी अपनी लाइन को कंट्रोल करके दे विल गिव रिपोर्ट टू क्लास टीचर. यस. नाउ व्हेन मॉनिटर्स विल गिव रिपोर्ट टू क्लास टीचर, तो क्लास टीचर विल टेक एक्शन इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ डूइंग मिसचिफ और एनी स्टूडेंट इज़ हैरेसिंग टू एनी अदर स्टूडेंट. सो क्लास टीचर के पास इतना हक है कि वो स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पनिश कर सके. बट इफ़ देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग एनी स्टूडेंट, ओके, ज़्यादा किसी ने मार दिया या फिर किसी के मारामारी में हर्ट हुआ, ब्लड निकलने लगा, और एल्स इफ़ अ चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली इरेगुलर ऑलमोस्ट ऑल द डेज़, तो उस वक्त क्लास टीचर क्या करेंगे? क्लास टीचर विल डेफिनेटली गो टू, वी कैन टेल, कोऑर्डिनेटर्स, यस और नो. कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएंगे क्लास टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स को कंप्लेंट करेंगे, राइट. कोऑर्डिनेटर्स अपनी तरफ से कोशिश करेंगे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए. यहाँ पर विलेजेस, सरपंच, पंच, म्यूनसिपालिटी, ये सब तालुका को रिपोर्ट करेंगे अपने गांव की प्रोग्रेस या ना प्रोग्रेस के बारे में, ओके. अब तालुका के पास जितनी पावर है वो अपने पावर गांव के लिए यूज़ करेगा, लेकिन अगर तालुका को लगे कि उसको ज़्यादा ही कुछ फंड चाहिए या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ही सीरियस है तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है, ओके. जैसे मॉनिटर्स ने यहाँ क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया, क्लास टीचर ने फिर मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म किया, राइट. अब कोऑर्डिनेटर्स को जब इन्फॉर्म किया तो कोऑर्डिनेटर्स अपनी तरफ से मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट.